ناظرین آداب، خاص بات کے ساتھ میں ہوں ہنا زبیر۔ سب سے پہلے خاص بات کی ہیڈ لائنز۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ پر اٹارنی جنرل کی رائے سے مسلمانوں میں بے چینی، اقلیتوں نے کیا تشویش کا اظہار۔ رواں سال حج کوٹے میں اضافے کا امکان، 2011 کی مردم شماری کے مطابق ہوگی تقسیم۔ کولکتہ میں کتاب میلہ کل سے، مغربی بنگال اردو اکیڈمی کی جانب سے کی گئی ہیں تمام تر تیاریاں مکمل۔ دہشت گردی کے خلاف کانپور میں مظاہرہ، سماجی تنظیموں نے نکالی ریلی۔ سوشل میڈیا نے 29 سال بعد جمیل کو ملایا اپنوں سے، میرٹھ کے سردھنا میں جشن کا ماحول۔ تو ناظرین، یہ تھی خاص بات کی ہیڈ لائنز۔ اب خبروں کو ڈیٹیل میں جانتے ہیں۔ سماجی کارکن کمال فاروقی نے جامعہ ملیہ کے بارے میں اٹارنی جنرل کے بیان کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ انہوں نے جامعہ کے اقلیتی کردار پر سوال اٹھانے کو آئین کے خلاف قرار دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آئین سے کھلواڑ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ واضح رہے کہ اٹارنی جنرل نے حکومت سے کہا تھا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ اقلیتی ادارہ نہیں ہے۔ بڑی دربھاگیہپورن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی لڑائی کوئی آج کی لڑائی نہیں تھی، بہت پرانی لڑائی تھی، اور اس کو باقاعدہ مجھے ڈسکس کیا گیا، اور بہت ہی میجر ایک اس میں اسٹیپ ہوا تھا کہ جو اسپیسیفکلی اسی چیز کاموں کے لیے کمیشن بنایا گیا تھا، مائنورٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کمیشن، جس میں اس طرح کی چیزوں کو ٹیک اپ کیا جاتا تھا، اور جو پورے ہندوستان میں جو آرٹیکل 30 کو لے کر جو پرابلمس تھیں کہ لوگوں کو مائنورٹی سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا تھا، ریکوگنیشن نہیں ہو رہے تھے، تو جامعہ ملیہ اسلامیہ کا کیس بہت پہلے سے پینڈنگ تھا۔ اٹ کیم ٹو دی کمیشن، اور کمیشن نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک بہت ہی ڈیٹیل میراتھن ججمنٹ پاس کیا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ اس کے مائنورٹی رائٹ کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ اس کا جو فائنانس ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ بیئر کرتی ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ آرٹیکل 29 بڑا کلیئرلی یہ کہتا ہے کہ جو مائنورٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے ان کو سینٹرل گورنمنٹ کی، اسٹیٹ گورنمنٹ کی مدد ملے یا نہ ملے، اس کے اوپر اس کا نربھر نہیں ہوگا، اور اگر کوئی مائنورٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہوگا تو اس کو فنڈز پرووائڈ کرنے کے لیے ڈسکرمنیشن نہیں کیا جائے گا۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی اس کے اوپر دھیان دیں گے، اور جو چاہے وہ لاء منسٹر ہو یا HRD منسٹر ہو، اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ ملک کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ میں کھلواڑ کیا جائے۔ ادھر پلاننگ کمیشن کی سابقہ رکن سیدہ سعیدین حمید نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اقلیتی کردار کو مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے مختلف ہے، جامعہ نیشنل تحریک کا حصہ رہا ہے، اور جامعہ کا اقلیتی کردار مسلمانوں کی تعلیمی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اور ایسا کوئی اینٹی نہیں ہے جو اس کو ڈسپیشنیٹلی دیکھے، اور جسٹس سہیل صدیقی نے بہت سوچ سمجھ کے اپنی بات رکھی تھی، مگر اب تو اس کا نام، جیسے آپ نے کہا، نام ہی سننے میں نہیں آتا کہ ویئر ہیز دیٹ انسٹیٹیوشن گون۔ اصل میں جامعہ کانسیپٹ جو جامعہ کا تھا وہ نیشنلسٹ تھا، اور اس کے جتنے بانی تھے وہ سب مسلمان تھے، اور گھر گھر جا کے انہوں نے، ذاکر صاحب نے بمبئی جا کے عبد المجید خواجہ کے ساتھ اور سیپلا کے جو بانی تھے ان کے ساتھ انہوں نے گھر گھر جا کے چندہ مانگا جامعہ کے لیے، تو مگر وہ لوگ سب نیشنلسٹ تھے۔ اب مائنورٹیز کے لیے جو یہ مائنورٹی انسٹیٹیوشن کے طور سے جس طرح سے اس جامعہ کا آکار ہوا ہے، وہ اس لیے کہ مائنورٹیز کو اس کی بہت ضرورت ہے، اور 50% جب ریزرویشن مائنورٹیز کے لیے ہو جائے تو اس میں ایک طرح سے مائنورٹیز کو ایک ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے، مگر یہ اب پھر سے یہ ریک اپ ہوا ہے، اور اب یہ پورا کمیونل لائنز پہ جانے کا اس کا اندیشہ ہے، تو اس لیے اس کو پوری چیز کو پالیٹکس میں ملوث کر دیا گیا ہے۔
मुल्क में अक़लियतों के जो इदारे हैं उनके अक़लियती किरदार को बाकी रखना बेहद ज़रूरी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर मौलाना सैयद मोहम्मद राबी हुस्न नदवी ने इन तमाम ख्यालात का इजहार किया। मुल्क के मौजूदा हालात पर पेश है हमारे नुमाइंदे सैयद अहमद सालिक की खास बातचीत। बात करते हैं मौलाना, इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मसला है उसके अक़लियती किरदार को ख़त्म करने की जो है बात चल रही है, मुख्तलिफ हलक़ों में जिस पर बहसें हो रही हैं। मुसलमानों की क़यादत को जो है क्या करना चाहिए, उसके आप अपने ज़ाती तौर पर उसके लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, इस सिलसिले में पहले भी हज़रत अली मियाँ साहब थे और दूसरे कायदीन थे, उन्होंने इस सिलसिले में बहुत कोशिशें की थी और अपनी राय का इज़हार किया था। और मुसलमानों का जो इस सिलसिले में जो मुतालबा है वो उसको गवर्नमेंट के सामने पेश किया गया था और बराबर सारे मुसलमान इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि हुकूमत इस बात को तस्लीम करे, इसलिए कि उसको मुसलमानों ने सिर्फ यही नहीं कि कायम किया बल्कि उसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी मुसलमानों ने। मगरबी बंगाल के मालदा में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के सिलसिले में बीजेपी के एक वफ़द ने आज राष्ट्रपति भवन पहुंचकर सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से खास मुलाकात की। इस वफ़द की क़यादत बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने की। वफ़द ने सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। बीजेपी लीडरों ने मगरबी बंगाल की ममता हुकूमत पर वोट बैंक की सियासत का इल्ज़ाम आयद किया। मालदा की घटना देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई घटना है। हमें बहुत अफसोस होता है कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने ये कहा कि बीएसएफ से वहां के लोगों का झगड़ा था। प्रश्न ये पैदा होता है कि यदि बीएसएफ से झगड़ा था तो थाने में आग क्यों लगाई? वास्तव में थाने में आग इसलिए लगाई कि वे सब लोग जो उस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे वे कहीं न कहीं फेक करेंसी से जुड़े हुए हैं, वो कहीं न कहीं अफीम की खेती से जुड़े हुए हैं, वो कहीं न कहीं आपराधिक तत्व हैं जिन्होंने अपना अपराध नष्ट करने के लिए थाने में आग लगाई। और दुर्भाग्य की बात है कि उन सबको संरक्षण देने का काम कर रही है पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी। मगरबी बंगाल के मालदा में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात को लेकर बीजेपी लीडरों की सदर जमहूरिया से मुलाकात पर कांग्रेस लीडर डॉक्टर शकील अहमद का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति सबसे हमारे बड़े संवैधानिक पद पर हैं, देश के अभिभावक हैं, उनसे मिलना कोई ये नहीं है, लेकिन घृणा की राजनीति करने की बीजेपी की आदत है और वो समाज में घृणा फैला के लोगों को एक तरह से बरगला के भाई को भाई में आपस में लड़ा के अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ये देश में सभी लोग जान गए। एक अहम पेशरफ्त में कर्नाटक के उप लोक आयुक्त एन आनंद ने आज अचानक कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के दफ्तर का दौरा किया। जस्टिस एन आनंद ने अपने ऑफिसर्स के साथ वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचकर चंद फाइलों का जायजा लिया। वाज़ेह है कि कर्नाटक का रियासती वक्फ बोर्ड इन दिनों शदीद इख्तलाफात और बदउनवानियों के इल्जामात से घिरा हुआ है। अपने अचानक दौरे के सिलसिले में नायब लोक आयुक्त ने तफसीलात बताने से गुरेज करते हुए सिर्फ इतना कहा कि एक इंक्वायरी के सिलसिले में वो वक्फ बोर्ड आए हुए थे। क्योंकि वहाँ केसेस चल रहे हैं, उनको इख्तियार है, जा सकते हैं, क्योंकि सीओडी केस चल रहा है मानिक शाह का, उसका शायद वो आए होंगे, मुझे तो इत्तला नहीं है। इट इज़ फॉर द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट। खास बात में रुकेंगे छोटे से ब्रेक लिए, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। इस साल हिंदुस्तानी आज़मीन हज को गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। मरकज़ी हज कमेटी ने ऐलान किया है कि हज 2016 के लिए कोटे की तकसीम 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक करेगी। हरम शरीफ की तौसी की बिना पर गुज़िश्ता साल मरकज़ी हज कमेटी का कोटा 1,20,000 था, लेकिन इस साल मरकज़ी हज कमेटी को उम्मीद है कि मरकज़ी हज कमेटी का कोटा 25,000 ज़्यादा हो सकता है।
हरम शरीफ की तोसी की बिना पर हिंदुस्तानी हाजियों का कोटा कम कर दिया गया था। गुज़िश्ता साल मरकजी हज कमेटी का कोटा 1,20,000 था, लेकिन इस साल मरकजी हज कमेटी को उम्मीद है कि मरकजी हज कमेटी का कोटा 1,25,000 से ज्यादा हो सकता है। मरकजी हज कमेटी का कहना है कि मार्च के महीने में सऊदी हुकूमत के जरिए नशिस्तों की फराहमी का मंजरनामा साफ हो जाएगा। एक तो ये है कि टोटल कोटा जो 1,000 पे 1 का जो फार्मूला है उसके हिसाब से 1,72,000 के तकरीबन इंडिया का कोटा बनता है 2011 के हिसाब से। दूसरी चीज़ ये है कि ये कोटा जो हमको मिलेगा उसको कैसे मुख्तलिफ जो रियासतें हैं उनको कितना जाएगा, तो ये दोनों चीज़ें 2011 की जो मर्दमशुमारी का प्रोपोर्शन है अब ये उसके साथ किया जाएगा। टोटल कोटा कितना होगा ये मार्च में ही मालूम होगा कि सऊदी हुकूमत का इसके बारे में क्या फैसला है। इस साल मरकजी हज कमेटी ने इस्लाहत की हैं। आज़मीन को नहीं करनी पड़ेगी पैकेज की खरीदारी। मेडिकल सर्टिफिकेट कुरान अंदाजी में नाम आने के बाद ही जमा करवाना होगा। हज गाइड मुख्तलिफ ज़बानों में फराहम की जाएंगी। दरख्वास्त फार्म को ज़रूरत के लिहाज से कम किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हज कमेटी की इस्लाहत के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी। खादिमुल हुज्जाज का कहना है कि आज़मीन हज की सहूलत के लिए मजीद इस्लाहत करने की ज़रूरत है। दिल्ली में ऑफिस खुलता है, स्टेट हज कमेटी में एक लोग लखनऊ जाते हैं बुकिंग के लिए, एक दिल्ली के लिए, ये 2 सेंक्शन है कि इलाहाबाद, ये 3 जगह। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस ये खोल दें। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक ऑफिस खोल दें कि भाई मुरादाबाद के हाजी वहाँ आके बुकिंग कराए, उनकी वहीं बुकिंग होगी, वहीं पासपोर्ट मिलेगा। तो उन सब डिस्ट्रिक्ट लेवल होना चाहिए ताकि उनके सफ़र का जो मामला है वो ख़त्म हो जाएगा और आफियत से पहुंच जाएगा। एक आदमी अपॉइंट करना है ज़िले में से। लेकिन हम पूरी तौर पर हमारी जो कमेटी है और वो NGOs जो पिछली बार भी इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर काम कर रहे थे, मैं उनके भी टच में हूँ। सबको करस्पॉन्डेंट करूँगा, ख़त लिखूँगा, उन्हें मुंबई बुलाऊँगा और हम लोग एक पहरेदार की तरह डटे रहेंगे। हाजियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे और अगर उन्होंने पिछली बार की तरह इस बार बेईमानी करने की कोशिश की तो आंदोलन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस बार हम कोर्ट भी जाएंगे। 1,000 की मुस्लिम आबादी पर एक आज़िम हज मुकर्रर होता है। सन 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक मुसलमानों की आबादी 17 करोड़ हो गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो हिंदुस्तानी मुसलमानों का कोटा बढ़कर 1,70,000 होना चाहिए। ETV के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। उधर हज 2016 के लिए 14 जनवरी से हज फॉर्म ऑनलाइन दस्तयाब होने के साथ साथ मुख्तलिफ मराकज़ पर भी दस्तयाब हैं। 8 फरवरी तक हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख है। हज फॉर्म दाखिल करने की मुख्तसर मुद्दत को लेकर खुद हज कमेटी मेंबरान भी मुतमईन नहीं हैं और तारीख में तौसी किए जाने का मरकजी हज कमेटी से मुतालबा कर रहे हैं। फार्म में नंबर 1 बात तो ये है कि सारा फार्म इंग्लिश के अंदर दिया गया है। जो भरने वाला कॉलम है वो सारा इंग्लिश में होगा और ब्लॉक लेटर्स में होगा। ज़्यादातर देहात के लोग जो हैं क्योंकि अंग्रेजी नहीं जानते, ऐसे लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और वो लोग दूसरों का सहारा लेकर वहाँ जाके फार्म भरवाएंगे और फार्म भरवाने के बाद उनको इस बात की कुछ खबर नहीं होगी कि फार्म के अंदर क्या गलती हुई है क्या नहीं हुई है। अगर कोई किसी तरह का दूसरे आदमी ने फार्म गलत भर दिया और उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं और वो चला जाएगा तो वहाँ जाके वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हमारी दरख्वास्त ये है कि फार्म जो है जहाँ अंग्रेज़ी में आप दे रहे हैं वह हिंदी और उर्दू के अंदर भी ज़रूर दें। उधर राजस्थान में भी हज फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन इस साल आज़मीन में हज फॉर्म भरने को लेकर बहुत ज़्यादा जोशो खरोश नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बुजुर्गों को हज कमेटी के ऑनलाइन फॉर्म भरने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वक्त की कमी की वजह को लेकर भी लोग काफ़ी फिक्रमंद हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कानपुर में जबरदस्त मुजाहरा किया गया। कानपुर में समाजी तंजीम मजलिस उलमा और शहर मोमिनीन की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ रैली निकालकर मुजाहरा किया गया। इस रैली में बड़ी तादाद में बच्चों ने भी शिरकत की। लोगों ने हाथों पर तख्तियां और काली पट्टी बांधकर मुजाहरा किया। जो प्रदर्शन जो है तो सिर्फ इसलिए है कि दुनिया में जो दहशतगर्दी फैली हुई है उसको आप लोगों के जरिए ख़त्म किया जाए। ये चीज़ जो है ये कभी दहशतगर्दी के साथ नहीं देता। आप तारीख में बता देंगे कि अगर इसने कभी दहशतगर्दी की हो
आयतुल्लाह खुमैनी ने दहशत गर्दी नहीं की है, अपने अमल से पेरिस से बैठ के उसको हुकूमत से शाख उतार दिया है। तो हर जालिम को एक दिन हुकूमत से उतरना है, वो किसी को मारे, लेकिन अगर खामोशी होगी तो जुल्म करता रहेगा। अगर आप लोग हमारा साथ देते रहेंगे तो कभी जुल्म आगे नहीं बढ़ सकता है और वो अपना दम तोड़ देगा। मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर जल्द ही अपने यहाँ उर्दूदा मुलाजमीन की तकरीरी करेगी। वजारत ने उर्दू के लिए काम करने वाली तंजीम उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इस मुतालबे को तस्लीम कर लिया है। तंजीम ने ज़ाब्ते के तहत उर्दूदा मुलाजमीन की तकरीरी की बात कही थी। वाज़ेह रहे कि तंजीम के जनरल सेक्रेटरी परवाज़ उलूम ने RTI के तहत मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर से पूछा था कि उसके यहाँ उर्दूदा मुलाजमीन की तादाद कितनी है। हमारा मरकज़ी हुकूमत से ये मुतालबा है कि जब 6 रियासतों में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का हक़ दिया गया है तो इन 6 रियासतों में मुलाजमीन की तकर्रुर के लिए ख्वाह वो कोई भी महकमा हो। फ़िलहाल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगाते हुए हमने दरख्वास्त दी थी। उस दरख्वास्त के जवाब में भी 21 दिसंबर का ख़त हमारे पास आया है, जिसमें इन्होंने एतराफ़ किया है कि उर्दू ज़बान का इल्म इंटरमीडिएट तक करने के लिए उन्होंने अपना सर्विस रूल अमेंड कर लिया है। कोलकाता में शुरू हो रहे मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के किताब मेले की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। किताब मेले में मगरबी बंगाल समेत दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश के उर्दू पब्लिशर्स भी शिरकत कर रहे हैं। इस मेले में वज़ीर आला ममता बनर्जी की नई किताब रोशनी भी फरोख्त के लिए दस्तयाब होगी। एकेडमी में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मेले से जुड़ी मजीद तफसीलात दी गई। पहली बार एकेडमी की जानिब से कुल हिंद ख़वातीन मुशायरे का इनेकाद भी किया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की तरफ से उर्दू किताब मेला का अहतमाम किया जाता है और इस दफ़ा भी किया जाएगा। ये सिर्फ किताब मेला नहीं है, बल्कि उर्दू के बच्चे बच्चियों को किताब पढ़ने का शौक़, उनको ड्राइंग का शौक़, उनको कंपटीशन में आने का शौक़, उनको तकरीर करने का शौक़, हम लोग कोशिश करते हैं कि हर तरह से एक बच्चे को हम लोग इस तरह नशोनुमा करें। खास बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए लोगों की दूरियां न सिर्फ कम हुई हैं, बल्कि बरसों पहले ख़त्म हो चुके ताल्लुकात और रिश्तेदारियों को भी सोशल मीडिया के जरिए तलाश करना आसान हो गया है। ऐसा ही एक वाक़या मेरठ के सरधना का है, जहां जमील नाम के एक शख्स को 29 साल के बाद, जी हाँ 29 साल के बाद अपने अहले खाना से मिलना नसीब हुआ। जमील के आने पर जाहिर सी बात है कि गांव में जश्न का माहौल है। नाराजगी के सबब 29 साल कब्ल सरधना के जमील ने अपना घर छोड़ दिया और मुंबई जाकर बस गए। जिंदगी की जद्दोजहद और कारोबारी जरूरतों के तकाजे करीबी रिश्तों पर हावी हो गए और दूरियां बनती गई। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जब करीबी रिश्तेदारों से राब्ता कायम हुआ तो अपनों की मोहब्बत का एहसास पैदा होने लगा। इस एहसास के साथ ही जमील ने अपने आबाई वतन का रुख किया। सरधना के छड़गांव के रहने वाले जमील को उनके घर और रिश्तेदारों तक पहुंचाने का जरिया बना फेसबुक। 29 साल बाद जमील के घर पहुंचने पर उनके गांव में जश्न का माहौल दिखा। फेसबुक पे मेरा कांटेक्ट नंबर ये था पिछले 8-10 साल से, जब से फेसबुक स्टार्ट हुआ है। फिर ये भाई लोग एक वो इस्लामिक साइट थी, उस पर मैं हमेशा रिसर्च किया करता था, तो उस पे भाई थे आसिफ गहलोत, तो 2-3 थे, तो उनमें से इन्होंने मेरे नंबर शायद कहीं से ट्रैक किया फेसबुक के माध्यम से, और फिर उन्होंने फ़ोन किया था। मेरा भतीजा है छोटा शान, उन्होंने अपना परिचय दिया और मेरे से पूछा, तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि ये मेरे परिवार वाले हैं। तो बात हुआ, तो फिर मैं उस टाइम के बाद में फिर मैं नहीं रह पाया और फटाफट आ गया। यहाँ से ऐसे बिना कहे चले गए
और वहाँ से बिजनेस के पर्पज से फिर हमारे से गायब हो गए, बिना बताए घर से गायब रहे। और हमने काफी जगह तलाश करा, जहाँ जहाँ पता चलता रहा, बुझे वालों से भी, वैसे भी दुआएं भी करवाई, लेकिन कहीं हमें सुराग नहीं मिला। लेकिन दिल को ये तसल्ली थी कि है जिंदा। 1987 में घर छोड़कर मुंबई बस जाने वाले जमील के बारे में उनके घर वालों को कोई जानकारी नहीं मिली और न ही जमील ने इस दौरान उनसे किसी तरह का राब्ता कायम करने की कोशिश की। लेकिन फेसबुक के जरिए मिली जानकारी से राब्ता कायम होने के बाद जहां जमील को अपने घर वालों से मुलाकात करने की बेचैनी थी, वहीं जमील के अहले खाना भी जमील का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज जमील के घर पहुंचने पर उनके अहले खाना की आंखों की नमी उनके जज्बात और खुशी का इजहार कर रही है। भोपाल के भारत भवन में तंजीम 2020 के जरिए फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश में मुल्क के 32 मुसव्विरों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में मुस्लिम लड़कियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने हुनर का खूब जौहर दिखाया। खास बात में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।